Hello everyone, I welcome you all to our channel Gurukul AGGT. Myself Neetu Singh and I am going to start Chemistry Part 1 Chemical Kinetics. Okay, so let's start. As I have said, I am going to take Chemical Kinetics. So before starting this topic, we need to understand that what is chemical kinetics. So let me tell you, before proceeding on this kinetics, we need to understand something which is called as reaction. Okay. So chemical reactions, as you have studied in 11th standard, some small part of hydrocarbons where you have dealt with reactions. So here we need to understand what is the importance of chemical reactions. So basically, I will say that chemical reaction is a very characteristic phenomenon. It is a characteristic property of a chemical reactions. So पहले ये समझना है कि chemical reactions क्यों ज़रूरी है. तो first point I would like to elaborate is कि with the help of chemical reactions we can predict about position of equilibrium. Okay, and next it also give us some information about feasibility of reaction, and the most important part is कि with the help of kinetics we also come across rate of reaction. तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि केमिकल रिएक्शंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं विच आर पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन. So this first topic I have already taught you in 11th standard very well, and equilibrium is something where we have learned that the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reactions. Okay. So this position of equilibrium जो है, it is also one of the most important characteristics of any chemical reaction. Okay. Next is feasibility of reaction. Feasibility जो term है ये आपको ये बताएगा कि कितना easily reaction can proceed. Okay, means how easily the reaction will carry out and how easily it will be proceeded. Okay, and the next is rate of reaction. This rate of reaction will take you to chemical kinetics, okay, which is the main topic of our study. So before this kinetics, यहाँ से आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ गया कि kinetics होता क्या है. तो काइनेटिक से बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो कि काइनेटिक इज रेट ऑफ अ रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि काइनेटिक्स क्यों पढ़ना है, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी काइनेटिक्स. ओके, सो बेसिकली यू शुड नो देयर आर 2 मेन रीजन फॉर स्टडिंग काइनेटिक्स. एक होता है कि काइनेटिक के हेल्प से वी कैन प्रेडिक्ट कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगी. I mean, how early the equilibrium will approach. Okay, so this is the first fact that we come to know about. Okay, we come to know about how quickly the reaction approach equilibrium. Okay, so this is the first very important fact. Secondly, with the help of kinetics, it is very interesting to know कि kinetic के help से आप mechanism of the reaction बता सकते हो. mechanism of reaction. Okay, so ये जो 2 property है ये काफ़ी ज़्यादा important हो जाती है chemistry में, क्योंकि जैसे अगर आपको एक basic idea होगा कि reactions कितनी जल्दी equilibrium पे जाएगी, so accordingly आप थोड़ा बहुत estimation लगा पाओगे कि जितना जल्दी reaction इक्विलिब्रियम पे जाएगा उतना जल्दी ही आपको प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, एंड सेकेंडली इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैकेनिज्म लेट मी टेल यू कि देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच यू हैव heard some or the other time that some reactions are unistep reaction, or more clearly it would be correct to say unimolecular
sorry, not unimolecular. I mean, unistep reactions, you can say these are single step reactions. मतलब जहाँ पे आपका reactant और product एक ही step में हो जाता है. मतलब reactant है that undergoes certain changes to form product. So means the reaction will be completed in one step. And the other type is that there are many reactions which get completed in more than one number of steps, which are multi steps. तो जब यूनिट स्टेप रिएक्शन है तो बात बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में आपका पूरा काम हो जा रहा है. आप काइनेटिक्स इजीली बता दोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी, क्या होगी. लेकिन दिक्कत आती है मल्टी स्टेप रिएक्शन में. मल्टी स्टेप रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मैनी स्टेप्स. मैनी स्टेप्स का मतलब ये नहीं है कि इट विल टेक इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और जनरली द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व आर बेसिकली वी विल टेक 3 to 4 steps. Okay. So in case of multi-steps reaction, the kinetics plays a very, very, very important role to identify the rate of reactions. So यहाँ से we will come to a definition of chemical kinetics. मतलब यहाँ से अब हम बताएंगे कि chemical kinetics होता क्या है. Okay, so definition says that कि it is a branch of science. It is a branch of science which deals with study of rate of a reaction. अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, डेफिनेशन इतना ही नहीं है. इसके आगे यू शुड ऑल्सो नो कि ये रेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट it will also help you to predict the mechanism of reaction, जैसे कि हमने पहले ही देखा हुआ है ये टॉपिक, to predict the mechanism of reaction. Okay, and apart from that mechanism के साथ साथ यहाँ पे आप ये भी सीखोगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे. ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस. Okay, is it clear now? So definition plays a very important role to understand what is chemical kinetics. And the next part is, okay, so this we have just seen about कि chemistry में ये जो chemical kinetics है ये क्या होता है. Okay, now let me relate it with some different subject. Apart from chemistry, you will be surprised to know that कि these kinetics, okay, it plays a very important role in biological system as well. Now the question is कि ये केमिस्ट्री का बायोलॉजी का क्या इंटरेक्शन हो सकता है. I mean, क्या इनके बीच में रिलेशन है. Why we are studying kinetics in biology? So बायोलॉजी में जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि there is something known as enzymes. ओके, और ये जो एंजाइम्स होता है इसको आपने बायो कैटलिस्ट के नाम से भी कभी ना कभी रिलेट किया होगा. सो बायो कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो दिस कम्स फ्रॉम केमिस्ट्री. आई मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट. आई मीन मतलब ये ऐसा टर्म है जिसको आपने मेजरली करके आपने इसको केमिस्ट्री में सुना होगा. सो बायो मीन्स लिविंग थिंग. तो ये एंजाइम एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है कि लिविंग थिंग, लेट इट बी प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनके बॉडी में जो एंजाइम्स होता है ना, दे प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट. ओके, तो जैसे कैटलिस्ट केमिस्ट्री में क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. आई मीन इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. सो इन द सेम वे हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट. आई मीन दे रेगुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ बॉडी. ओके, तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा देखा आपने कि काइनेटिक्स कहाँ पे यूज़ होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट काइनेटिक्स जो है ये एनवायरनमेंट में भी काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है. नाउ द क्वेश्चन इसके एनवायरनमेंट से और केमिस्ट्री का क्या है. ओके, वैसे तो बहुत से फैक्टर है जो एनवायरनमेंट और केमिस्ट्री को डायरेक्टली लिंक करते हैं. तो यहाँ पे जो अभी काइनेटिक्स को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे एनवायरनमेंट में, लेट्स सी. तो जैसे कि आप लोग ने पढ़ा है कि आजकल जो है ये ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है. ओके,
बिकॉज ड्यू टू एक्सटेंसिव ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ओजोन का जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डिप्लीट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इज स्किन कैंसर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गया है अब लोगों के बीच में। सो यर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस ओजोन का जो लेयर है इट इज़ गोइंग ऑन डिप्लीटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप काइनेटिक्स को अगर रिलेट करोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो जो रेट है, ओके, ओजोन में क्या होता है बेटा, देखो एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, ये एक बात होती है कि ये अपने जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर है वहाँ पे अपना ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ओजोन का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरीन, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे हम कहते हैं कि स्टॉप यूजिंग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपने एनवायरनमेंट में। जैसे कि जो भी एसी और रेफ्रिजरेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एक केमिकल होता है विच इज़ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें अगर आप नाम से ही देखोगे तो स्टार्टिंग में एक वर्ड आ रहा है क्लोरो। क्लोरो जो है इट रिप्रेजेंट क्लोरीन एटम, और ये जो क्लोरीन एटम है ना, ये अपने एनवायरनमेंट का दुश्मन है। जैसे ये क्या करता है, जैसे ही ये अपने एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में जाता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ सन रेज, इट स्टार्ट डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। ओके, सो यहाँ से पता चलता है कि वाई ये हमेशा कहा जाता है कि डोंट यूज़ AC एंड रेफ्रिजरेटर टू अ लार्जर एक्सटेंट, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट में देखने मिलता है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट में काइनेटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो सी हियर वी हैव सॉ अबाउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इन द सेम वे आप देखोगे कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट भी हो रहा है। यस और नो? अब डिप्लीट हो रहा है तभी तो हम कहते हैं कि दिस इज ओजोन में एक तरीके का होल फॉर्म हो रहा है। और ये जो ओजोन में होल फॉर्म हो रहा है ना, यही क्या करता है, यूवी लाइट को अपने अर्थ के पास आने का एक रास्ता देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि स्किन कैंसर लोगों को होने लग गया है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये तो था एक एडिशनल फैक्ट। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या रोल होता है कि जितने स्पीड से, ओके, जितने स्पीड से अपना ओजोन लेयर फॉर्म हो रहा है ना, उसके कई गुना ज़्यादा स्पीड से वो डिप्लीट हो रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड टू बी स्लोअर than the rate of depletion of ozone. Okay, rate of depletion of ozone. So यहाँ पे भी काइनेटिक्स के हेल्प से तो हमने ये प्रेडिक्ट किया कि अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्लो रेट से हो रहा है एज कम्पेयर टू इट्स डिस्ट्रक्शन। ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो नाउ काइनेटिक्स का डेफिनेशन आई होप आप सबको समझा होगा कि व्हाट इज़ काइनेटिक्स। नाउ द फैक्ट इज़ कि ये लेसन में हमको पढ़ना क्या है। तो ये लेसन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले कि काइनेटिक्स में जो हमने 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखा था, ये डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक जो है बहुत डिटेल में कवर करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कौन से फॉर्मूलेज यूज़ करना है। ओके, एंड यहाँ पे हमको कुछ 2-3 छोटे मोटे से डेरिवेशंस भी करने हैं। सो डोंट गेट पैनिक, इट्स अ वेरी इजी डेरिवेशन। ओके, सो फर्स्ट आपको ये पढ़ना है। सेकेंड, यू हैव टू स्टडी कि मैकेनिज्म, कि किसी रिएक्शन को अगर मुझे ग्राफिकल वाइज एक्सप्लेन करना है, उसका मैकेनिज्म अगर मुझे ग्राफ पे एक्सप्लेन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो सेकेंड फैक्टर इज कि आपको यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज मैकेनिज्म। ओके, प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म। एंड उसमें एक और आपको नेक्स्ट जो फैक्टर विच यू वांट टू स्टडी और यू विल बी स्टडिंग इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट तो हम पढ़ ही रहे हैं ना रिएक्शंस के, तो अब ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को
कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ द पार्टिकल्स, टेम्परेचर। ओके, अगर आपको याद होगा प्रोबेबली, तो यू में कम आप उसको थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि वाई रेट ऑफ रिएक्शन इज नेसेसरी, और उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप एक अच्छे लेवल पे आ सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर देखा जाए तो जो काइनेटिक्स है ना, ये अपने इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। लेट्स से अगर कोई किसी को अपना कंपनी सेटअप करना है, तो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओनर है या फिर जो भी वहाँ का मालिक है, वो सबसे पहले अपना दिमाग यही लगाएगा कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है। ओके, सो बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी विल ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। किसी रिएक्शन को अगर सेटअप किया है तो उसके रेट को कैसे बढ़ाना है, सो दैट उसको अल्टीमेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। ओके, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका डेफिनेशन क्या होता है। अभी तो आपने जो देखा वो डेफिनेशन था काइनेटिक्स। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर याद होगा तो आपने मैथमेटिक्स में स्पीड पढ़ा होगा। ओके, स्पीड पढ़ा था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो मैथमेटिक्स में जैसे आपने देखा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इन द सेम वे केमिस्ट्री में जो स्पीड है ना, उसी को हम रेट कहते हैं। ओके, केमिस्ट्री में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये क्या इंडिकेट करेगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ओके, हाँ, अब बात आती है कि मैथमेटिक्स में तो हम भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन क्या केमिस्ट्री में कोई डिस्टेंस होता है क्या? कोई डिस्टेंस नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो रेट है ना, वो निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखने की, जैसे मैथ्स में अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यर वी कैन नाउ डिफाइन व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बेसिस पे देखो डेफिनेशन क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, द रेट ऑफ अ chemical reaction may be defined as the change in concentration. Okay, the change in concentration of designated species, change in concentration of designated species. Okay, अब क्वेश्चन है कि डेजिग्नेटेड स्पीशीज क्या होता है। हमने तो केमिस्ट्री में कभी कुछ ऐसा सुना नहीं है। तो बेटा ये जो होता है ना डेजिग्नेटेड स्पीशीज, ये बात कर रहा है आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, ये बात कर रहा है किसके बारे में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और ये जो चेंज होगा ना, ये चेंज जो होगा, दिस विल बी पर यूनिट टाइम। अब मे भी आप लोगों को समझाना हो कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे कि ये है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको इजी टर्म में समझना है तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेजिग्नेटेड स्पीशीज। अच्छा, चेंज जो होता है ना बेटा, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी से। ओके, डेल्टा सी। अब यहाँ पे सी मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि सी से कॉन्सेंट्रेशन वर्ड याद रखना है। ओके, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये क्या लिखा है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब यही चीज़ जो है ना, ये डेल्टा सी अपॉन टी भी हो सकती है, डेल्टा सी अपॉन टी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक टर्म पढ़ोगे, एवरेज रेट। क्या पढ़ोगे आप, एवरेज रेट। अब ये जो एवरेज रेट है ना, इसका डेफिनेशन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ओवर विच द चेंज ऑकर। इसका मतलब ये जो एवरेज रेट है ना, ये भी चेंज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, चेंज। चेंज किस चीज का, चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट
or product. Okay, change of a reactant or product. And next, divided by the time interval. Okay, divided by the time interval. अब इसको अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? चेंज इन रिएक्टेंट और चेंज इन प्रोडक्ट. चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डेल्टा. चेंज के लिए क्या यूज करेंगे? डेल्टा. अब चेंज किस 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 चीज का हो रहा है? या तो अपना रिएक्टेंट चेंज हो सकता है. ओके, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल. तो टाइम इंटरवल को आप कैसे डिनोट करोगे? चेंज इन टाइम. या तो आप ये तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो नेक्स्ट आप कैसे बोलोगे कि चेंज इन concentration of product. Okay, change in concentration of product upon time interval. Okay, तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है कि व्हाट इज एवरेज रेट. अगर आप इसी एवरेज रेट को पहले वाले जो डेफिनेशन है जिसको हमने क्या बोला था? रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला था वो ये था, डेल्टा सी अपॉन टी या फिर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. और जो दूसरा है एवरेज रेट, उसका भी यही फॉर्मूला है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. अब सी की जगह मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई कर दिया है और यहाँ पे प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर दिया है. लेकिन अगर आपको सिम्बॉलिकली इसको कहना है तो आप ये दोनों चीज़ को कह सकते हो कि ये यही चीज़ है. ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपने एक पढ़ा कि एवरेज रेट. एक और रेट आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. क्या कहते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस रेट. अब ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई ये तो बात कर रहा है एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के बारे में. यस और नो? ओके, मतलब ये बात करेगा एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के बारे में. मतलब यहाँ पे भी हम रेट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे जो रेट है ना, यहाँ पे रेट जो कैलकुलेट किया जाएगा ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा. तो इंस्टेंटेनियस रेट को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, इट इज़ a rate of reaction at specific instant. ओके, तो अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ना बेटा क्या यूज करना है? डी बाई डी टी. मतलब डी बाई डी टी ऑफ रिएक्टेंट. ओके, और यू कैन से डी बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट. अब प्लीज़ डी बाई डी टी को आप डिफ्रेंसिएशन के साथ मिक्सअप मत कर देना, क्योंकि ये जो डी है ना, ये डी भी क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट स्मॉल चेंज. ओके, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट स्मॉल चेंज. इसका मतलब अगर एक ओवरऑल व्यू देखा जाए कि ये जो रेट है, जो एवरेज रेट है, जो इंस्टेंटेनियस रेट है, ये होता क्या है, तो इसको अब एक सिंपल टर्म्स में मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ ऑल दिस. ओके, तो जैसे कि आपने सबसे पहले रेट का डेफिनेशन पढ़ा था. रेट कुछ नहीं है, बस ये कहता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम में सिर्फ टाइम. ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है. ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्ट. सेकेंड जो हमने देखा वो देखा हमने एवरेज रेट. अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में एक छोटा सा ही डिफरेंस है. ओके, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में एक छोटा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है. मतलब टाइम इंटरवल इज़ लार्ज, मतलब लंबे टाइम तक का जो टाइम डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट. और अगर आपका टाइम इंटरवल बहुत कम है ना, मतलब टाइम इंटरवल अगर आपका बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल मतलब छोटा है, बहुत कम टाइम के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो फॉर्मूला दोनों का एक ही बनता है. एवरेज में सिर्फ आप डेल्टा यूज़ करोगे, मतलब जैसे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बोलोगे, और इंस्टेंटेनियस में आप डी यूज़ करोगे, और कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, सो वंस अगेन आई रिपीट कि एवरेज में आप डेल्टा यूज़ करोगे और इंस्टेंटेनियस के लिए आप स्मॉल डी यूज़ करोगे, क्योंकि स्मॉल डी जो है ये छोटा सा चेंज बताएगा, एवरेज जो है ये काफ़ी लार्ज चेंज को अभी शो करेगा. ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. सो नेक्स्ट इज़, अब ये रेट जो है इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं. जैसे कि
Okay, so let understand this topic with the help of one example. अब आप अज्यूम करिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है जो ए से बी तक जा रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो ए है, जो प्रोडक्ट है वो बी है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बोलेगा कि इसी रिएक्शन के लिए ना आप रेट लिखो। क्या लिखो? रेट लिखो। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चाहे वो रेट बोले या एवरेज रेट बोले, आपको लिखना वही सेम चीज़ है। तो एवरेज रेट बोलेगा तो क्या लिखोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल या फिर चेंज इन टाइम। ओके, तो यहाँ पे भी आपको बात वही करनी है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख लो एक बार फिर से कि डेल्टा मीन डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्या आपके पास रिएक्टेंट है और ये है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रेट कैसे लिखोगे आप? रेट जो है ना आप दोनों के लिए लिखोगे। ओके, रिएक्टेंट के लिए भी लिखना है, प्रोडक्ट के लिए भी लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, ये एक बात हो गई है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन को ना आप इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट के टर्म्स में। जैसे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट को लेकर आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है वो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है आपका? बी है। तो फिर से आप क्या लिखोगे? डेल्टा बाय डेल्टा टी तो लिखोगे ही, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज किसका होगा? बी का होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपने रिएक्टेंट बोल दिया है ना, तो जरा लॉजिकली आप सोच के देखो कि जैसे जैसे टाइम पास होते रहता है, आई मीन एज द टाइम प्रोसीड, अगर आप ध्यान से कभी नोटिस किया होगा तो आपने ये बात देखी होगी कि विद द प्रोसेस ऑफ टाइम वी कुड सी दैट कि जो रिएक्टेंट है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन कम 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 होते चला जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगा? घटेगा, मतलब कम होगा। कम होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। सिमिलरली प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये टाइम के साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन डिनोट करना है। अब प्लस का साइन आप लिखो या मत लिखो, इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड, बट स्टिल खुद को खुद के लिए आपको ये लिख देना है सो दैट आपके दिमाग में ये बात फिट बैठे रहे। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे? प्लस का साइन लगाओगे। रिएक्टेंट के लिए क्या करोगे? आप माइनस का साइन लगाओगे। अब ये जो पूरा टर्म है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग एक और वर्ड है, इसको और दूसरी तरीके से आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये पूरा लिखने से बेटर है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ओके, सिमिलरली ये जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इसको आप क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखोगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा और आपका रिएक्टेंट क्या होगा? कंज्यूम होता चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा? प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन लास्ट एग्जाम्पल, टेक एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं आज के लिए। सो लेट्स से मेरे पास एक और रिएक्शन है, ए प्लस बी टुगेदर दे गिव सी प्लस डी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रिएक्शन के लिए आप रेट लिखो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? रेट ऑफ कंजप्शन। ओके, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए का क्या होगा? बोलो, ए कहाँ है? रिएक्टेंट साइड है ना, रिएक्टेंट साइड है मतलब ये माइनस होगा। तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ओके, सिमिलरली रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ क्या लिखोगे? बी। अब बी क्या है? बी फिर से रिएक्टेंट है, मतलब ये भी क्या होगा? डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम।
अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। सी कहाँ दिख रहा है, प्रोडक्ट के साइड दिख रहा है, मतलब ये टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो आप क्या लिखोगे, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। तो सिमिलरली आपके पास एक और है प्रोडक्ट में, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब क्या बचा है, डी बचा। डी के लिए क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई है। अब क्वेश्चन है कि बार बार ये स्टेटमेंट लिखना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है। तो इसको ना हम लोग एक सिंपल वे में एक रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको हम लोग एक और कैसे इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये एक तरीका है। अब एक और बात बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको ये आज इंस्टेंटेनियस रेट भी सिखाया है, तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसमें मतलब ये वाली रिएक्शन के लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट भी लिख सकते हो। ये कौन सा रेट लिखा है आपने, दिस इज एवरेज रेट। ये कौन सा है, एवरेज रेट। अब इसके लिए अगर इंस्टेंटेनियस रेट पूछेगा ना तो करना कुछ नहीं है, जहाँ पे आपने डेल्टा लिखा है ना वहाँ पे खाली डी कर दो बस। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू प्लस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू प्लस डी डी अपॉन डी टी। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय, ऑल टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।